मॉर्निंग। आज हम आ गए हैं सारा जी के घर पे और इसीलिए आए ताकि हम उनका डेली रूटीन देख सके कि कैसा है। सो अब हम आ गए हैं सारा जी के घर पे, तो चलते हैं, कम ऑन। सारा जी, बच्चों के साथ मॉर्निंग में ये मेडिटेशन टाइम है आपका, क्या कहना चाहोगे? This is our me time. And you know, जैसे आप जानते हैं कि आफीन और मैं, हम लोग बहुत माइंड एंड हार्ट में बिलीव करते हैं, द कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड हार्ट। वी बिलीव कि जो चीज़ आप अपने आप से ज़्यादा कहोगे वो रियलिटी हो जाती है। Correct. इसीलिए वो बोलते हैं ना, जैसे तस्बीह पढ़ना, एफर्मेशंस या chanting, all this is the universal law. Correct. So if the kids keep saying that I love my body, I love my heart, I love my mind, you're actually making their heart and mind very strong. करेक्ट। Zidane, tell me, do you think by your heart or do you think by your mind? Heart. Heart. And how do you operate from your heart? Oh, because when there's an emergency, our brain and heart send signals. Yes, it sends signals. Isn't that beautiful? Yeah. And are you strong and powerful? Yeah. We also have some blood cells in our head. Of course you do. And also we have some cells that fix everything. Yeah, and you're supposed to love everyone. I love that. We also have a stomach. Okay, that's called gut feeling. You have gut feeling. So what are we doing through meditation? Getting more minds and being more powerful. Yes. And also our heart gets stronger and our brain and our mind, even our cells and our blood cells. Absolutely. Absolutely. Even our teeth, Yes. We're making our heart and mind stronger, isn't it? even our tongue. Yes. Hugs make her stronger. Yeah. And Hugs. they do. Yeah, hugs make you stronger Even too. kisses. Yes. Hugs and kisses make you stronger, don't But you? licking is not allowed. And Do angels visit you at night? yeah, but I feel them when they kiss me. Oh. But I do not. Because their kisses are a little silent and we can't also feel them because angels are not allowed to come when people are awake. Because otherwise they're not allowed to see them because they're only when they die they're Invisible. allowed. They're invisible. No, Yeah. they're not. But you know who are my angels? Human. Us. Eyes and Zidane are my I knew angels. it. Eyes and Zidane are my angels. You know, वेल सारा, मी टाइम के बाद क्या करते हो? मी टाइम के बाद ये लोग अपने क्लास चले जाते हैं, हाँ। फिर मैं चली जाती हूँ अपने लाइब्रेरी। अगर हमारा सेमिनार होता है तो आफीन एंड मी वी हेड फॉर सेमिनार, डोंट डू इट। skipping it. Otherwise, we do our Zoom calls and then I sit in the library. I make my proposals. पूरे हफ्ते का वो करते हैं हम लोग। ओके, टाइम टेबल पूरा शेड्यूल। Yes. यस। Yes. So it turns out I see my plants. And मैंने अपनी फ्रेंड सुजल को बोला था, because she's a gardener, तो मैंने उसको बोला ऐसे प्लांट्स डालना कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे, खाली प्लांट्स, और उसके बियॉन्ड भी खाली ट्रीज दिखाई दे। Okay. So I have my coffee, my tea, and my cozy reading sessions. Something where I just get lost in the book and I just get lost in the nature. So this is my zone. This is my do not disturb zone actually. ब्यूटिफुल। अगर मैं फिटनेस की बात करूँ, यू नो, व्हाट इज फिटनेस फॉर यू? Fitness for me is not having a great body actually. Fitness for me is having a great health. ओके। और जो हमको शुरू से बताया गया है ना कि हम लोग की दादी नानी बोलते थे कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये हमको आस्ते आस्ते समझ में आया है। आई हैव सीन दैट, आई स्वेयर बाय गॉड, आप जितना भी पैसा कमा लो ज़िंदगी में, आपके साथ अगर आपको हेल्थ है
तो दुनिया की सारी मतलब आपके पास वो वेल्थ है. करेक्ट. Health नहीं हो तो because I've seen people and one of my just recently my closest person that I've interacted with, Vibhu, he passed away with Yes. cancer and I have seen his journey. उस इंसान को जितना zest था ना जीने के लिए मैंने वो देखा नहीं. उसने सब कुछ ट्राई किया होगा just to live life. And I just feel हम लोग के पास है और हम लोग इतने ना शुक्र है. Correct. हम वो ग्रैटिट्यूड ही नहीं रखते. सब लोग अपने स्ट्रेस में जी रहे हैं. Exactly. हमारे पास जो नहीं है हम उसका बार बार सोचते हैं, लेकिन जो है उसका हम ना वैल्यू करते हैं ना ग्रैटिट्यूड देते हैं. और पता है प्रेयर का भी एक तरीका होता है. लोग सोचते हैं प्रेयर करना मतलब हमेशा मांगना होता है, लेकिन प्रेयर करने का एक बहुत ही मैजिकल तरीका है. जब आप प्रेयर करो, when you're in the church, when you're in the masjid, when you're in the gurudwara or in a temple, you're supposed to thank God for everything, Correct, right. for what you have. So when you thank God for everything, you get more. How much are you going to ask? Exactly. You keep asking. मतलब आप आस तभी करोगे जब आपके पास नहीं है. आप thank तभी करोगे जब आपके पास सब कुछ है. सब कुछ है. तो automatically the universe helps you. So this is like a very, try it. It's a powerful magic. Try praying in a different way. Just thank for everything and don't ask anything. You watch what happens. ये टाइम स्टॉप के साथ Gym, coconut is must. Hydration is a must. After gym, before gym. Before gym, normally I have black coffee. Then after gym. Divine. ये छोटी-छोटी चीजें ना, अगर हमें इसका gratitude हो तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि लंदन में ये नहीं मिलता. I got facts over tracks, this and that, spitting smoke, spitting gas, I can roast, I can gas, think I'm all paying ass, but I don't know what that can erase all the past and the pettiness. Oh, my reflection of the emptiness, hilarious, you think you was my time, you're delirious, delirious, because you are behind the fake exterior, mysterious, no, I'll always be the superior, get off me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains of rap. Everybody wants it, but I have this
जा रहे हैं, बताइए हमारे दर्शक। हम जा रहे हैं मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में, विच इज़ अ जापानीज cuisine एंड इट्स कॉल्ड मिराई। ओके, सो आपका वहाँ पर फेवरेट फूड है कौन सा? वैसे तो सभी फेवरेट है वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव सुशी एज वेल। आई नो पीपल आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ सुशी। You do? Well done. So I like this sashimi, salmon sashimi, and it is amazing. And then वो लोग live counter में they ask you what you want और आपके सामने बनाते हैं, and it's the experience is beautiful. So I'm sure you're gonna love it. इंशाल्लाह ज़रूर। बट इसी के साथ साथ थोड़ी सी आपके करियर के बारे में हम बात करते हैं। मुंबई में आप रह रही हो, कितने साल से रह रहे हो वैसे आप? On and off 10 years. शादी से पहले से? In fact शादी से पहले I was in London. ओके, Yeah. शादी के बाद आप यहाँ पर शिफ्ट? Yes, in fact शादी के बाद भी I was in London. Afeen used to travel here most of the time. Okay. And then मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे ये ads बहुत पसंद थे. So I wanted to shoot ads. And that's how my challenge started, by the way. Okay. So although I did seminars, when I was 18 I did my first parenting seminar. Imagine. So but then I started shooting for ads. और उस टाइम ना क्या होता था, कोविड तो था नहीं, तो नथिंग वाज डिजिटल. आपको बाकायदा स्टूडियो जाके वहाँ पे ऑडिशन देना होता था. एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल रिलेट टू मी इन दोज डेज. इतनी लाइन लगी होती थी. अभी जो हमने पास किया आराम नगर, दैट वाज द हब ऑफ ऑडिशन. ओके, स्टूडियो 2000, स्टूडियो दिस, स्टूडियो दैट, सब उधर ही. देन इवन इन मुकेश छाबरिया's ऑफिस. सो इतनी लाइन लगी होती थी एंड यू यूज्ड टू थिंक ओ माय गॉड. बट because I wanted to do it so bad that my corporate friends and everybody was shocked that one day I went out. I went around 12 o'clock and I came back at around 7, 8 o'clock. And they said, what the hell were you doing? And I said, I actually waited in the line for 4 hours just to give one 30-35 seconds. कभी ऐसा रहा है कि आपका फेवरेट एड शूट के बारे में आपको पता चला हो, यहाँ पर ऑडिशन हो रहा है, और वो कौन सा फेवरेट एड था जो आपको करना ही था? इसके पीछे ना बहुत बड़ी स्टोरी है. छोटे में बता दो हमें. दर्दनाक स्टोरी है, अरे खतरनाक स्टोरी है. थोड़ा सा बता दो हमें. I always wanted to do Fair and Lovely ad. Okay. Because जिस तरह से वो लोग शूट करते थे ना, the girl used to look very dreamy, nothing to do with Gora and Fairy. So I used to love all these जैसे little shoots and all. They were so interesting. Yes. So हालांकि I've done some very nice ads. Nivea, Colgate, Bajaj. So I actually got the Fair and Lovely ad. I was very excited. Shoot महबूब स्टूडियो में था. मैं पूरा स्टोरी नहीं बताऊंगी, लेकिन ऑडिशन में मैंने लिखा था बिकॉज आई वाज डूइंग माय फर्स्ट फिल्म. सो आई हैड रिटन इन द ऑडिशन दैट आई हैव नाइट शूट्स. आई विल बी कमिंग फ्रॉम द नाइट शूट आल्सो इन द मॉर्निंग. फिर आपका खत्म करके वहीं से आई विल बी अगेन गोइंग फॉर द नाइट शूट. सो आई हैव टू यू हैव टू लीव मी एट 7 सिंस दे सेड ओके कम एट 6 AM. तो 7 PM इज अ फेयर इनफ, यू नो. दे सेड या बहुत पहले खत्म हो जाएगा. ऐसा ठीक है. महबूब स्टूडियो उधर पहुंचे, लाइन्स वाइन्स लर्न किया. एक तमिल में लाइन था और एक हिंदी में, तो दोनों का ये था. तैयार हो गए, ड्रेस रिहर्सल्स हो गया, सब कुछ हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया. 11-12 बजे तक कुछ नहीं. तो मैंने बोला ये क्या हो गया. सो आई वेंट इन द स्टूडियो इनसाइड एंड आई वाज लाइक आई कांट फाइंड, देयर वर सो मेनी पीपल, इतने सारे लोग. तो सो the guy comes and he asks me what happened. I said I've been waiting since morning 6 AM, so I'm wondering when the shoot will start. तो बोला या जस्ट लिटिल, आई एम श्योर कि लंच से पहले ही स्टार्ट होगा. आई सेड ओके बिकॉज यू नो आई हैव टू गो इन द इवनिंग. या वी नो. अंदर गए, लंच भी हो गया. फिर मैं लंच के बाद सीधा गई. आई सेड गाइस व्हेन आर वी गोइंग टू स्टार्ट. अब मेरे को थोड़ा पैनिक अटैक हो रहा था बिकॉज आई थॉट कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ, खत्म कब होगा. करेक्ट, यू नो. So I again went inside and they're like all giving me vague answers. They're not giving me anything. You know, एक होता है कि रिस्पेक्ट रखो, आके खुद बोलो इतना टाइम होने वाला है, आप प्लीज, you know. Every time the actor has to step out of the vanity and go inside the studio to check. Then at 5:30, I said अब तो नहीं होगा. It can't. Absolutely. And as much as that was my dream, and as much as I wanted that, I also want my respect. You cannot treat an actor, forget actor, you cannot treat a human like that.
कि कोई आ ही नहीं रहा है वैनिटी में बताने के लिए. So I just went in the studio, I took out my mic and I said thank you very much. It was great working with you guys. I walked out. I will not name the person. A very very big director came from behind and my mom was there with me. तो हम कार की तरफ जा रहे थे and he said who the F are you? ओह, क्या है इसका नाम क्या है? He said he didn't even know my name. इतना डिसरिस्पेक्टफुली लड़कियों से भी बात होती है इस इंडस्ट्री में? Oh, ओह माय गॉड. you know, I think उस टाइम पे क्या होता था ना, जब आपने कुछ अचीव किया हो लाइफ में, तो बाकियों को ऐसे ट्रीट करते थे लाइक एज वो यू नो शी नीड्स अस. देयर इज दिस थिंग, एक्टर्स भी अपने आप को जब तक कुछ बने नहीं अपने आप को स्ट्रगलिंग एक्टर बुलाते थे, Yes. व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग. Right. You know, struggling, why would you call yourself this name, struggler? Correct. Right. I'm an achiever. Say that sounds better. तो people used to look also with that perception कि इसको काम चाहिए. चाहिए. तो right. उस हिसाब से देखते थे. तो बोलता था अच्छा सारा खान मैं देखता हूँ क्या इस इंडस्ट्री में कैसे मैं तुमको survive रखता करते हूँ. हैं. अच्छा. Dude, I lost the plot. I lost Oh the my plot. God. And I launched at him and I said, do what you want. Even I'll see where you stand. Because this arrogance doesn't stay in this place for long. Correct. Right. I just went in the car, I walked out. They never paid for that. Although I waited, but I never expected also. क्योंकि पता था इतने disrespectful और unprofessional थे. But it was a very, very, very professional ad agency. And it was like that. So unfortunately, so that was my one time very, very bad experience. बाकी struggles रहे हैं. बहुत लाइन में खड़ी रही हूँ. बहुत impatiently wait किया है. Which somehow the universe and God teaches you how to have patience in this industry as well. But this was a very stupid experience that I had, and इसके बाद I never had such an experience. But this was a weird one. जब हम पहुंचने वाले थोड़ी देर में बस रेस्टोरेंट, और फिर वहाँ Yes. पर थोड़ा सा लंच करेंगे, फिर वहाँ पर भी थोड़ी चिट Ah, करेंगे food. और बहुत सारी बातें करेंगे. चलिए. मीटबॉल अच्छा मेरे कहने में एक चीज ट्राई करोगे? ठीक है, पहले बोलो ट्राई करोगे. यस ठीक है, ये थोड़ा सा चलो. ये हाँ, विद with whatever you can take your fork. This you Just can, this, yeah. थोड़ा आराम से लेना. हाँ, have this, it's yum. मतलब देखो मैंने हाँ हाँ ठीक है. सो मुझे स्पेशली कहा गया कि एक बार टेस्ट करके देखो जो भी है कैसा है. have it. मोरी मैया नॉट फेयर सर, नॉट फेयर. भाई बता नहीं सकता मैं, मेरा एक्सप्रेशन देख के समझ आओ. आंखें नाक कान सब एक हो चुके अभी अंदर. वसाबी सॉस, वसाबी से पूरा दिमाग हिल जाता है. अरे दिमाग नहीं, मेरा खुदा हिल गया. तुम दिमाग की बात कर रही हो. यस, तो फाइनली हम आ चुके हैं कॉरल. वेल एक्साइटेड. और क्या कुछ करवाने वाले हो वैसे आज? सबसे पहले तो मैं पल्लवी से मीटिंग करूंगी, जो Okay. हमारा पेंडिंग था, जो हम आधा घंटा लेट हुए, ज्यादा नहीं. Okay. और उसके बाद मैं कराऊंगी हेयर वॉश हाँ. एंड ब्लो ड्राई. वेल हम भी इनके साथ ब्यूटी आज बनेंगे. चलो. चलो. ये something? यस, लेट्स ट्राई. हेलो पल्लवी जी, आ जाओ. हाउ आर यू? हेलो माय लव. आज आप इनको ब्यूटी बना दो, क्योंकि हमने आज इनको पूरा दिन थका चुके हैं. ठीक है, फाइनली वो यहाँ पर फ्रेश होने आए हैं. भी नहीं लग रही है. पता चलेगा मैंने तुम लोगों को थका लिया. चलेगा कि now we're gonna do this, now we're gonna do that, this Yes. and coral. चलो फिर आप इनके साथ पहले मीटिंग कर लो,
आपकी पर्सनल वेडिंग? वेल सारा जी तैयार हो गए, पूरा दिन खत्म हो गया, अब बज रहे कुछ 6:30। इसके बाद आप क्या करने वाले हो? इसके बाद एक चीज में थोड़ा डिले हुआ है, सो हमें मेरे ख्याल से आधे घंटे बाद देयर इज अ सरप्राइज फॉर हुम? फॉर यू गाइस। सीरियसली? आधे घंटे के बाद हमारे लिए सरप्राइज? अरे भाई, मीडिया वालों को कौन सरप्राइज देता है? ये तो पहली बार हमारे साथ हो रहा है, ऐसा कब हुआ है हमारे साथ? बट इजंट इट द होल डे सरप्राइज नहीं हुआ है? यस यस, व्हाई नॉट? अच्छा था, विद पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव पीपल अराउंड अस, है ना? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपको कैसा लगा हमारे साथ आज पूरा दिन गुजार कर? बहुत मजा आया। बोर तो नहीं किया? मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। आई हैव नेवर टेकन एनीबॉडी विद मी फॉर द होल डे। वैसे एक दिन में मेरा कोई भी एक दिन सेम नहीं होता है, थोड़ा सिमिलर हो सकता है। जैसे आई सेड आई डू 2 days a week I have Japanese cuisine, तो वो सिमिलर है। जिम इज वेरी सिमिलर, 4 times a week या 3 times a week होता है। Coral salon is quite 3 times a week। एक चीज नहीं हुई है जो आफीन के साथ, ऑफिस एंड सेमिनार, वो नहीं हुआ। एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मतलब वो बाकी के चीजें जो गैप्स है जिसपे वो रिपीटेड नहीं होते, वो इतने सारे चीजें होती है दैट यू कैन नॉट कॉल सारा's डे आउट इन जस्ट 1 day। नहीं, हम आने वाले दिनों में नहीं, महीनों के बाद आपके और आपके बच्चे के साथ स्विमिंग क्लास चलेंगे, कुंफू क्लास चलेंगे, आरफिन जी के साथ So भी it's baby's day out. यस यस। सरप्राइज है जी हाँ। क्या है सरप्राइज में थोड़ा और बताओ हमें। सरप्राइज ये है कि सिर्फ हम खाते नहीं है, हमें खिलाना अच्छा लगता है। So let's all have some fun and join the fun with the people who are going to have some fun. And this is the real party. आज Absolutely. आज दिन की असली पार्टी तो अभी हो रही है। ये असली मजा है। मजा है। सारा दैट वाज अमेजिंग सरप्राइज और हैप्पी एंडिंग था। मैं जैसे बोल रही थी, ये हैप्पी एंडिंग था। एब्सोल्युटली। क्या कहना चाहोगे? चैरिटी करते रहो, लोगों को खिलाते रहो। व्हाट डू यू हैव टू से टू द ऑडियंस?
सी द थिंग इज कि हम लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम अपने बारे में सोचते रहते हैं, और ये भी जो हम चैरिटी कर रहे हैं ये हम इनके लिए नहीं कर रहे, ये हमारी सोल के लिए, हम अपने लिए कर रहे हैं. सो जो लोग समझते हैं ना कि चैरिटी वी आर डूइंग इट फॉर अदर पीपल, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर एनीबडी, बिकॉज ऊपर वाला है जो सबके लिए करता है, वो आपको जरिया बना रहा है. आप करके ना अपने सोल को पीस में दे रहे हो. Yes, सो exactly. दिस इज समथिंग आई फाइंड वेरी प्लेजरेबल. जैसे आपने उनको दिया, you found it was so beautiful, it was so pretty, Correct, like, you know, correct. you just felt good about it. So I think, and when you see the smile on people's faces, you know, that is the biggest blessing. तो ऐसे हमको बस blessing कमाना है, हम selfish है तो हम देते हैं ताकि हम blessing कमाएं. तो I think everybody should learn from that. And I tell you, आज थोड़ा late हो गया, otherwise my kids would have loved it. उनको बहुत पसंद आता है ना. तो बर्थडे में भी देखो ना, Yes. वो सब बच्चों को सर्व कर रही थी, Yeah. प्लेट में ही सही, लेकिन सबको सर्व कर रही थी मम्मा की जैसी. So, जैसे मम्मी डैडी है वैसे ही बच्चे हैं. तो यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, परवरिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. अपना देखकर बच्चे बड़ों का ही देखकर सीखते हैं. घर में जिस Absolutely. तरह का माहौल होता है वैसे ही बच्चे अडॉप्ट करते हैं. Absolutely. सो ये हमारा था आज का डे आउट. डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑन वीरल बयानी, स्पेशली सारा अरफीन खान का डे आउट. थैंक यू सो मच. Bye bye.